Guys, so let's do the weekly forecast. So this is the new month, September 2024, and this is going to be our first week of this month, right? So first, let's come to the Forex Factory and let's see कि किस किस दिन रेड फोल्डर न्यूज़ है, ठीक है? So here you can see the pair. Basically, I trade वो मैं select कर लिया हूँ उसका रेड फोल्डर एंड ग्रे फोल्डर. आई वांट टू सी कि किस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है बेसिकली, ओके? So आज मंडे था, राइट? सो मंडे वी हैड बैंक हॉलीडे ऑन यूएसडी एज वेल एज ऑन कैड. सो वी नो जिस दिन बैंक हॉलीडे रहता है या नो रेड फोल्डर न्यूज़ रहता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि उस दिन मार्केट कंसोलिडेट करे, राइट? ट्यूसडे वी हैव दिस यूएसडी न्यूज़, ओके? वेडनेसडे वी हैव few news, okay, on odd CAD as well as on USD as well. Thursday को भी न्यूज़ है एंड द मेन न्यूज़ कमिंग इज ऑन फ्राइडे, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो कि हम लोग का एनएफपी है, राइट? And this is going to be very high impact news. And this day, basically on Friday especially, you should avoid trading just before NFP, okay? You can trade after NFP, after news release, but avoid to trade before NFP, okay? This is one of the major high impact news on the USD, okay? And इसके कारण सब पेयर जितने भी पेयर है सब में वॉल्यूम अच्छा आता है, okay? So okay, so we know कि this week we have this one high impact news, so maybe we can see some consolidation. Okay, so let's come to trading view and let's start with DXY. Okay, so I want to start with one thing. I want to show you guys 12 month ka. Okay, basically yearly candle I want to show you. Okay, and let me delete this. I saw somewhere this yearly chart, so that's why I'm also sharing. Okay, so here you can see we have grabbed this yearly external range liquidity, right? This is 12-month candle, one candle represent 1 year, right? So you can see this yearly external grab. So after external sweep, where we go to this internal, right? You can see we have this yearly internal, right? So maybe there is high possibility and जैसा भी फंडामेंटल जैसा भी न्यूज़ चल रहा है, इट लुक्स लाइक कि DXY बेरिश होगा, ठीक है? सो मे बी वी गोइंग टू ट्रेड मच लोअर, ओके? क्योंकि इस मंथ वी एंटिसिपेटिंग कि जो फेड है, यूएस का फेड है, और दे गोइंग टू कट इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट वो लोग कट करेंगे तो DXY विल बी बेरिश, ओके? एंड it fundamental looks good, and according to yearly technical analysis it also looks good कि DXY can be bearish, okay? So maybe this can be our drawn liquidity, at least this low, okay? Previous year का जो लो था हम लोग का 2023 का ईयर जो लो है वो हम लोग का लिक्विडिटी भी हो सकता है, ओके? सो लेट्स कम टू मंथली टाइम फ्रेम, ओके? मंथली कैंडल अभी क्लोज हुआ है, मंथली कैंडल ओपन हुआ है, राइट? सो दिस इज ईयरली इंटरनल का जो ओपनिंग है. इफ यू सी मंथली टाइम फ्रेम, यू कैन सी फ्रॉम लॉन्ग टाइम वी आर इन जस्ट कंसोलिडेशन, राइट? यू कैन सी जस्ट कंसोलिडेशन, बस कंसोलिडेट कर रहे हैं. सो व्हाट यू कैन एंटिसिपेट, ओके, अकॉर्डिंग टू AMD PO3 मॉडल, नाउ वी कैन एंटिसिपेट सम मैनिपुलेशन लेग, राइट? समथिंग लाइक दिस मे बी, ओके? समथिंग लाइक दिस मैनिपुलेशन. और ये मैनिपुलेशन कहाँ तक जाएगा? जो कि हम लोग का बेसिकली 12 मंथ का जो ये फेयर वैल्यू गैप है, ओके? सो इस रेंज में हम लोग मैनिपुलेशन देखेंगे खत्म होते हुए, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आई आल्सो डोंट नो, वी विल सी. बट यू कैन सी मंथली एक्यूमुलेशन, वी कैन एंटिसिपेट मैनिपुलेशन, we can anticipate this manipulation leg right now, okay, to this yearly fair value gap. Then maybe next year we can look for market to distribute higher, okay? We will see definitely how it works, but monthly looks accumulation, we are right now looks like a manipulation phase, okay? So my bias is bearish right now on DXY, uh, according to monthly time frame, okay? And I hope ये monthly समझ में आया होगा. Let's come to weekly time frame. So
This is our basically yearly internal. Okay, so if you see weekly time frame, okay, let me zoom this. So you can see we created this weekly bearish fair value gap. Okay, we have this weekly fair value gap as an internal, and you can see this was the basically yearly fair value gap, right? And also we have swept this low, right? So what I am looking right now on DXY, I am looking for market to tap this weekly internal, okay, and then give me some confirmation so I can target this first draw on liquidity, okay, this external range liquidity on weekly, and the final ultimate target will be this low, okay. ठीक है, सो अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, या फिर डेली स्टार्ट करता है बेरिश प्रिंट करना, या 4 आवर स्टार्ट करता है बेरिश प्रिंट करना फ्रॉम दिस लेवल, देन कैन लुक फॉर कंटिन्यूएशन डाउन साइड ऑन DXY। और DXY अगर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नीचे ट्रेड करेगा, तो वी कैन एंटिसिपेट यू एंड GU विल ट्रेड हायर, राइट। सेकेंड थिंग, लेट्स से ये जो वीक है, अभी जो NFP वीक चल रहा है, ठीक है, लेट्स से मार्केट एंड ऑफ द वीक मार्केट क्लोज होता है स्ट्रांगली, ओके, एंड ये वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाता है। अगर इसको इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाता है, तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी बेसिकली, ओके। अगर ऑर्डर फ्लो का वीडियो देखो तो समझ में आएगा। सो दिस कैन बी आवर नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, दिस वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। अगर यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है वीकेंड में, एंड इसको वीकली इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग का फिर नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे वो होगा बेसिकली, राइट। So we will see how it works. I know कि basically month का first week we should take trade only when high probability setup match up, right? क्योंकि NFP वीक में यूजुअली मार्केट थोड़ा चॉपी होता है, और जिस दिन NFP रहता है उस दिन काफी हाई वॉल्यूम हाई वॉलेटिलिटी आता है, जिससे काफी बड़ा मतलब मूवमेंट आता है मार्केट में, ओके। सो आई नो कि एक मंथ में 4 वीक है यार, आराम से ट्रेड करोगे, अच्छे से हाई प्रायोरिटी सेटअप फाइंड करोगे, तो एवरी वीक यू विल गेट 2 3 गुड सेटअप एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग। लेट्स सी हाउ मार्केट रिजेक्ट फ्रॉम दिस वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ओके। हो सकता है कि ट्यूसडे कल ट्रेड करे हायर, एंड मे बी वेनेसडे थर्सडे, एंड देन फ्राइडे वी कैन एंटिसिपेट वेरी स्ट्रांग मूव डाउन साइड, क्योंकि NFP है, ओके। सो वी विल सी, क्योंकि काफी सारा हाई इम्पैक्ट न्यूज ऑलरेडी है, बट दिस इज द मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज, ओके। सबसे बड़ा मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज ये है, ओके। बट वी विल सी टुमारो हाउ इट मूव ड्यूरिंग न्यूज, ओके। Is it going to move in our favor or not, we will see, okay। So this is what I'm watching on DXY. On daily time frame, nothing, I'll stick with weekly, okay, because higher jitna higher time frame utna acha। So let's come to Euro USD now। So I was watching Euro USD as well. You can see we have this internal, right, weekly bullish fair value gap, okay। We have this weekly bullish fair value gap, we have this first external in liquidity, and you can see we here also we have this swing high as well, okay। So I am anticipating price to first trade lower to this weekly bullish fair value gap, and if start giving me confirmation on H4 H1, then I'll be looking for long, okay। अगर वहीं पे DXY पे अगर bearish formation start करता है, then it will be nice to look for long on Euro USD, okay। And if you go to daily time frame, if you see daily time frame हम ऑलरेडी ये bullish fair value gap में है, but ये डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे हम लोग का ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, ओके। सो यहाँ पे मैं लॉन्ग सेटअप अवॉइड करूंगा, ओके। इफ यू टैप दिस, इट विल बी आइडियल टू लुक फॉर लॉन्ग, एंड यही वीकली फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे यहाँ पे भी एक डेली फेयर वैल्यू गैप है एंड ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। बट अगर इस डेली फेयर वैल्यू गैप को मार्केट होल्ड करता है यहाँ पे, लेट्स से कुछ 4 आवर टाइम फ्रेम का मैं फिर वेट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड दिस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। So let's say we retrace to this 4 hour fair value gap, and अगर second impulse मिलता है, and ये second impulse में fair value gap से form करते हैं, then I'll be looking for trade, okay। I'll be looking for bullish move, okay, but not going to look for long at this 4 hour fair value gap। I'll wait for the second impulse, okay। The reason I'm waiting for second impulse because हो सकता है कि ये fair value gap hold नहीं करे and market और draw करे नीचे toward this weekly bullish fair value gap। So we will see how it perform, okay। And let's check
GPUSD, same thing. You can see we have this weekly bullish fair value gap, and we looking for market to internal to external. The price action is still bullish. If you see GPUSD is much bullish as compared to EURUSD, okay? And GPUSD holding its bullish level, right? You can see market यहाँ पे hold किया था weekly level, market यहाँ पे भी weekly level अपना hold किया था. So you can see the current PA is bullish, right? क्योंकि market bullish level hold कर रहा है, it's on bullish order flow right now, okay? So same thing here, if you trade lower, okay, fill this fair value gap and 4 hour में confirmation मिलता है, then you can look for long. So we have to see also as well as कि DXY कैसा perform कर रहा है जो अभी हमने discuss किया, right? बट अगर मेरे से पूछोगे कि GPUSD और EURUSD में कौन सा स्ट्रांग है, तो आई विल चूज GPUSD फॉर लॉन्ग बेसिकली, ओके? इफ यू सी जो ऑर्डर फ्लो है, ओके, यू कैन सी GPUSD और EURUSD कौन सा आपको स्ट्रांग लग रहा है बेसिकली, ओके? इफ यू सी इफ यू सी EURUSD जो लास्ट वीक का कैंडल क्लोज हुआ था, यू कैन सी कितना एग्रेसिव क्लोज था, ओके? वेरस GPUSD में उतना एग्रेसिव क्लोज नहीं था, राइट? एंड GPUSD ऑलरेडी इस प्राइस मंडे 10 जुलाई 23 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट? एंड EURUSD अभी तक उसके ऊपर बेसिकली ट्रेड नहीं किया है, राइट? इफ यू सी हियर, ओके, सो GPUSD लुक्स मच बुलिश, राइट? सो आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग ऑन GPUSD. अगर सेल के लिए मेरे को देखना होगा तो मैं फिर EURUSD में देखूंगा, ठीक है? लेट्स चेक USD CAD एज वेल. सो on weekly time frame, we have this weekly fair value gap, okay? Sorry, we have this weekly bearish fair value gap, right? So I'm looking, as I said on the last video as well, जो मैंने डाला था वीकली फोरकास्ट, आई एम लुकिंग फॉर USD CAD टू ड्रॉ टू दिस वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ओके? क्योंकि अभी कुछ भी जो करंट स्ट्रक्चर है, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, मार्केट काफी बेरिश है, ओके? सो डेली एज वेल एज लुक गुड इफ यू सी डेली टाइम फ्रेम, ओके? ऑफ कोर्स अगर लेट्स से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड लेट्स से मार्केट ये डेली फेवल का टैप करता है, यहाँ से रिजेक्ट करता है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कभी मूव कैप्चर करता हूँ और 2 आवर सिक्योर करता हूँ, आई विल बी हैप्पी. आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट ऑल द वे डाउन टू दिस, ओके? आई हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मेरा POI है, कहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, क्या मेरा लिक्विडिटी है. लेट्स से मेरा लिक्विडिटी ये है या फिर ये है, ये लो है, तो आई नो माई बायस इज बेयर, देन आई हैव टू जस्ट फ्रेम माई ट्रेड, राइट? सो जहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप है, वहीं पे डेली फेयर वैल्यू गैप भी है. सो आई एम लुकिंग फॉर मार्केट टू टैप दिस डेली बेरिश फेयर वैल्यू गैप, एंड फिर यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है, बैक साइड मूव मिलता है, ओके? तो देन आई विल बी लुकिंग फॉर सेल हियर, ओके? एंड अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो यू विल सी वेरी नाइस लिक्विडिटी इज बिल्डिंग राइट नाउ, ओके? यू कैन सी वेरी नाइस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, फेलियर स्विंग, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट बिल्ड कर रहा है, राइट? Can see very nice failure swing, low resistance liquidity is building. So if you tap first this daily fair value gap, okay, अगर ये daily fair value gap पहले tap करते हैं फिर यहाँ से confirmation मिलता है, then I'll be looking for sell, okay? And we have very nice liquidity as well. So I am definitely watching this USD CAD, okay? So we will see. So let me delete this, okay? एंड ऑफ कोर्स अगर DXY बेरिश होता है यहाँ से वीकली से, तो USD CAD भी बेरिश होगा, राइट? So let's see Euro odd. Let's first come to monthly. So in monthly we have nothing. Let's check weekly time frame. So देखो weekly time frame पे right now we are at this weekly bullish fair value gap. Okay, but it's not look so clean for long setup. Okay, so I'm waiting for daily to shift basically. Okay, but for me it looks like little bearish right now. Okay, ठीक है. You can see we have this kind of some support here, right? So we can maybe market is drawing toward this liquidity, okay? Weekly not look clean, I know it's right now at this weekly bullish fair value gap. So let's say for example ये weekly fair value gap में market है, ठीक है? You can see here, I'm not going to look for 4 hour entry. I'm going to wait कि मार्केट डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे, ओके? अगर लेट्स से वो वीकली फेयर वैल्यू गैप मार्केट होल्ड करता है और यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है? डेली फेयर वैल्यू गैप मार्केट फॉर्म करता है, देन आई एम गोइंग टू फ्रेम माई
लॉन्ग सेटअप फ्रॉम दिस डेली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। क्योंकि if you see the current flow on daily, it's very bearish and we have created two bearish fair value gap here, you can see, right? So I want to see कि ये daily bearish level जो है वो inverted fair value gap बने, ये जो bearish order flow है bullish order flow में convert हो, then I'll be interested, okay? But for me, I'll ignore right now euro odd. I'll wait for more confirmation, okay? And one more thing I want to say, देखो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सी आई ट्रेड दिस पेयर, ओके, ये पेयर मैं ट्रेड करता हूँ फॉर एग्जांपल, इतना ये सब पेयर मेरे वॉच लिस्ट में, ठीक है। मे बी यू ट्रेड ओनली यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी, इट्स कम्प्लीटली ओके, ओके। जस्ट वांट टू से वन थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ सामान लेने निकले हो, ओके। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आप आईफोन लेने निकले हो, ठीक है। आप एक ही दुकान में, लेट्स अभी आईफोन 16 आई गेस लॉन्च होने वाला है, आप आईफोन 16 लॉन्च हुआ, आप लेने के लिए निकले। तो आप एक दुकान में गए, ओके, आप एक शॉप में गए, आपको पता चला कि यार वहाँ पे तो आउट ऑफ स्टॉक है। एक शॉप आप गए, फिर दूसरा शॉप गए, अब वहाँ भी पता चला कि आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। सो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप यूरो यूएसडी देख रहे थे, ठीक है। आपको यूरो यूएसडी का बायस क्लियर नहीं है, आपको यूरो यूएसडी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे पेयर में गए देखने के लिए क्या दूसरा पेयर में सेटअप प्रेजेंट है कि नहीं है, ओके। आप दूसरा दुकान में क्यों गए? ताकि आप पता कर पाओ कि यहाँ पे आईफोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेट्स से यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, तो यू गो टू थर्ड पेयर, राइट। अगर आपके वॉच लिस्ट में लेट्स से अगर बेसिकली हमेशा वो पेयर देखते हो, तो यू गो टू थर्ड पेयर, थर्ड शॉप बेसिकली, राइट। लेट्स से यूरो यूएसडी में कुछ नहीं मिला, जीपी यूएसडी में नहीं मिला, तो आई विल गो टू यूएसडी कैट। अगर यूएसडी कैट में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आई विल गो टू नेक्स्ट पेयर, ओके। जैसे मैं ये पेयर और जो भी पेयर में मेरे को सेटअप मिल रहा है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि किसमें बायस है, आई विल स्टिक विद दैट, ओके। अब लेट्स से तुम सिर्फ यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी ट्रेड करते हो, अगर आपको यूरो यूएसडी में भी ट्रेड नहीं मिला, जीपी यूएसडी में भी ट्रेड नहीं मिला, तो व्हाट यू विल डू, यू विल वेट कि ये, जैसे मान लो यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी आपका शॉप वन शॉप टू है, ठीक है। आप फिर वेट करोगे कि आईफोन वो शॉप में आए तब आप जाके लोगे, यानी कि मतलब अगर आप यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी से ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप वेट करोगे कि कुछ चीज क्लीन फॉर्म हो, तब आप जाके सेटअप लोगे। अगर आप कोई चीज सेटअप फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी यार कुछ भी प्रोडक्ट ले लोगे, यानी कि कोई भी कुछ भी ट्रेड ले लोगे, राइट। अगर आपको आईफोन 16 ही लेना है, तो आप थोड़ी जाके फिर एमआई का फोन लेकर आओगे, नहीं ना, यू विल वेट करोगे, राइट। सो हियर ऑल्सो इन ट्रेडिंग ऑल्सो यू हैव टू वेट। अगर आपको हायर टाइम फ्रेम अगर बाय समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट वेट, वेट फॉर द मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैंडल प्रिंट, मे बी बाय एंड ऑफ द वीक आपको अच्छा सेटअप मिले, ठीक है। ऐसा मत करो कि मंडे को समझ में नहीं आया, ट्यूसडे को रस करके ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वेडनेसडे को रस किए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, थर्सडे को जब सेटअप फॉर्म हो रहा है, आप ट्रेड लिए, वो विन हुआ, लेकिन वो विन ये जो लॉस को ही कवर करने में निकल गया बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इन स्टार्टिंग। मैं मेरे को सेटअप नहीं मिल रहा, मेरे को ट्रेड करना है, स्टार्टिंग का ही वीक में मैं लॉस लेता था, फिर एंड ऑफ द वीक थर्सडे फ्राइडे अगर मेरे को एक विन भी आ रहा है या दो विन भी आ रहा है, तो वो दो विन बेसिकली ये जो लॉस मैंने लिया है स्टार्टिंग वीक में, उसी को कवर करने में चल जाता था, ठीक है। एंड इट्स कम्प्लीटली ओके इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बायस, नॉट ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी क्लीन बेसिकली, ओके। सो आई होप थोड़ा भाषण समझ में आया होगा, ठीक है। सो लेट्स जीपी ऑड, so GP odd, if you see, it looks interesting basically to me. We have grabbed this high, right? And if you see on monthly time frame या फिर इससे भी lower time frame में जाएंगे, तो you'll see we have this equal low, right? So we have grabbed this high. Let's see on weekly time frame. You can see we have this equal low liquidity, right? But right now market is in consolidation, ठीक है। market काफी consolidate कर रहा है, and अभी ये weekly fair value gap hold भी कर रहा है, right? सो आई एम गोइंग टू वेट, ओके। आई नो, देखो एक और चीज काफी वीडियो में मैंने बोला भी है, अगर लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल, ओके, अभी एज अ करंट सिनेरियो प्लेइंग, अगर लेट्स से मेरा भी बायस बेरिश, आई नो कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज है, ठीक है। मतलब इतना रेंज है, अगर मार्केट को ये इक्वल लो लिक्विडिटी ग्रैब करना है, तो हो सकता है कि मैं इस वीक नहीं ट्रेड करूं, नेक्स्ट वीक भी ट्रेड नहीं करूं, मे बी इस वीक लेट से कुछ फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये वीक कुछ इस टाइप से क्लोज हुआ, नेक्स्ट वीक भी कुछ इस टाइप से क्लोज हुआ, ठीक है, एंड वीकली बेयरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया हम लोग, ठीक है। तो मे बी फिर वो वीकली बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में मैं सेल फ्रेम कर सकता हूँ, एंड आई नो कि मेरा लिक्विडिटी है, देन आई कैन लुक फॉर द सेल। सो आई हैव टू वेट, ओके। सो डोंट स्टार्ट रशिंग, ऑफ कोर्स इट कैन
इजीली पॉसिबल कि हम लोग ये वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप होल्ड करें एंड कंटिन्यू करें ट्रेड करना हायर। सो जो चीज़ अभी हम लोग यूरो वॉट में डिस्कस किए वही चीज़ मैं इसका भी वेट करूंगा। आई वेट की मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश लेवल स्टार्ट करे फॉर्म करना, डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट करे फॉर्म करना, देन आई विल फ्रेम माई ट्रेड। ओके, बट राइट नाउ इट्स नॉट लुक क्लीन टू मी, मे बी फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस इट लुक्स क्लीन फॉर यू कि आपको क्या ट्रेड करना है, बट फॉर मी राइट नाउ I just want to wait for uh, market to form something good for me. Okay, so let's check Eurocat. Okay, we have grabbed all this high right now. Okay, monthly में तो कुछ नहीं है, monthly candle you can see how it closed. Okay, grab the high and very strong close to downside. So last month basically weekly time frame. Let's see. Weekly में also we have this equal low. Right now we grabbing this swing low. We are at this weekly bullish fair value gap as well. Let's see daily time frame. So same thing here also. Going to wait for market to give me more confirmation. You can see we have so many resistance. So many resistance means so many bearish fair value gap. Okay. So I'll see. I'll wait. Okay. GP CAD. GP CAD looks much good as compared to Euro CAD. Okay. So you can see GP CAD holding weekly level right here. You can see here. You can see we hold this weekly bullish fair value gap. So this looks much bullish. And let's come to daily time frame. So this looks good. Daily bullish fair value gap as an internal, and we have this external target, right? And also we overlapping with this mitigation block as well, right? Or breaker, whatever you want to say. So let's check 4 hour. Also very nice failure swing, right? You can see nice failure swing, low resistance liquidity we have. So let's see if we start seeing some 4 hour bullish fair value gap, then we can look for frame to look for long setup. Okay, this can be good. अगर let's say 4 hour fair value gap form करते हैं, okay, that can be good for look for intraday, or maybe during New York, maybe London kill zone. So this is look interesting. I'll be watching for long setup. Uh, and 1 hour not looks clean. You can see choppy move. Okay, so I'll wait for 4 hour time frame. Okay, and here you can see we have also created this inverted fair value gap. So let's see if we create bullish fair value gap or not. So that will be ideal to look for long. Okay, JPY pairs. Let's start with monthly time frame. So we're watching Euro JPY. So Euro JPY, you can see we have created this bearish fair value gap on the monthly time frame. Okay, so let me mark this quickly. Okay, so once we tap this monthly fair value gap, then I'll be looking for sell. अभी लगता है टाइम है, मे बी 1-2 दिन में हिट करे. So let's check weekly as well. If you see right now we are at this weekly bearish fair value gap, right? बट उससे भी एक हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग एक की लेवल फॉर्म किए उसके ऊपर, तो मे बी हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करें. ठीक है, सो आई वेट कि मार्केट ये मंथली टैप करे. मंथली टैप करने के बाद आई बी वेटिंग फॉर डेली टाइम फ्रेम. ओके, सो अगर डेली में फिर लेट्स से टैप किए हम लोग यहाँ, फिर डेली में बेरिस शिफ्ट होते हैं बेरिस वैल्यू गैप के साथ, देन इट विल बी आइडियल टू लुक फॉर द सेल सेटअप. ओके, क्योंकि मंथली अलाइन रहेगा बेरिस, डेली अलाइन रहेगा बेरिस, राइट? देन इट विल बी गुड. सो लेट्स सी जीपी जेपी, आई गेस सेम थिंग यहाँ पे भी है. सो वी हैव दिस मंथली बेरिस वैल्यू गैप. ओके, यहाँ पे अभी हम लोग टैप कर चुके हैं. लेट्स सी वीकली. यू कैन सी वीकली में हम लोग यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक भी है यहाँ पे, राइट? वी हैव दिस मिटिगेशन ब्रेकर, वट एवर यू वांट टू से. ओके, different name. So we have two overlapping area, and let's check daily. Okay, so daily looks good. Okay, why I'm saying daily looks good, you can see we tap this monthly fair value gap. Okay, and if you see जो अभी हम लोग DXY में डिस्कस किए थे, राइट? मंथली टाइम फ्रेम पे वो यहाँ पे डेली पे हो रहा है. यू कैन सी accumulation, राइट? राइट नाउ व्हाट मार्केट डूइंग, मार्केट इज इन मैनिपुलेशन लेग.
where it is manipulating to key level, right? Monthly fair value gap. Now what we're going to look for, we're going to look for the distribution to the downside. Okay, so ये monthly fair value gap टैप करने के बाद सेम चीज डेली बेरिस fair value gap सब या 4 आवर में very strong rejection सब होता है, तो then you can look for sell setup, okay, and can target this liquidity. USD JPY, this looks like a breakaway gap, so weekly nothing right now on weekly. Here we have this small daily bearish fair value gap. तो लेट्स सी इफ इट रिजेक्ट, अगर देखो सेम चीज अगर DXY यहाँ से अगर बेरिश स्टार्ट होता है मूव करना, ठीक है, तो डेफिनेटली USD JPY भी बेरिश शिफ्ट होगा, ठीक है। और JPY सेम मंथली फेयर वैल्यू गैप में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मंथली फेयर वैल्यू गैप में यहाँ है, वही चीज जो अभी हम लोग डिस्कस किए GP JPY में, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो रहा है एंड वी विल वेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डेली बेरिश फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग। एक और चीज मैं देख रहा था, आई गेस गोल्ड था वो, आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट ट्रेड पर्सनली गोल्ड, बट आई वाज वाचिंग दिस, आई गेस, या इफ यू सी दिस सिल्वर, सॉरी सिल्वर, गोल्ड नहीं, if you see this silver, we have this weekly internal, we have this weekly external target, and if you see daily order flow was looking good basically to me, okay, you can see जो daily, जो डेली बुलिश पे वैल्यू गैप है, अगर ये कैंडल्स के अंदर क्लोज होता है देन वी विल अवॉइड, ओके, बट अगर लेट्स से ये कैंडल नीचे क्लोज होता है, ओके, अभी 1 घंटे में क्लोज होने वाला है, अगर लेट्स से नीचे क्लोज होता है इट विल बिकम इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, देन फिर ये डेली बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में हम लोग सेल के लिए देख सकते हैं, ओके। पर्सनली आई डोंट ट्रेड, इफ यू ट्रेड दिस इज व्हाट आई विल बी लुकिंग फॉर, ओके, अगर ये इन्वर्टेड बनता है, ओके, एंड देन वी कैन लुक फॉर सेल एट दिस लेवल। सो ओके, सो दिस इज माय वीकली फोरकास्ट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, एंड see you guys on the next video. And one more thing, make sure you join the Discord, and if you have any question, ask me there, okay?